Hello friends, I am Ashwini Garg. Welcome back to our YouTube channel. Our class topic business risk. Today we will discuss about the remaining part of the causes of the human risk. The last one cause of the human risk is other causes. I already discussed how business risk is created. Or causes of business risk. There are four types of the causes of business risk: natural causes, human causes, economic causes, as well as other causes. In my previous video, I already discussed about the natural causes, economic causes and human causes. Today we will discuss about the other causes of the business risk. Other causes means that all those causes of the business risk which are not related to the nature, related to human being as well as not related to the market. Other causes means there are many type of the reason, many type of the causes in the market, in the nature, which arise a various type of the risk to the business organization and create a heavy loss to the business organization. Other causes are various type of that. In other causes we include other natural causes, means natural calamities. Technical causes, mechanical causes, and the last one is managerial causes. In other causes, we discussed all the four parts of the types of the other causes: natural calamities, technical causes, managerial causes and mechanical causes. The first one is natural calamities या natural causes. I already discussed about the natural causes in the first part of the cause of business risk. Now the part of the other causes is, first one is natural causes, or you can say that the natural calamities. Natural causes and natural calamities I already discussed about in our previous video: seasonal changes, geological changes and other natural causes. In today's class we will discuss about all the natural causes which are other than the previous causes. In natural causes we include that type of the causes which are arise due to some defect in things and machinery. जो भी हम अपने बिजनेस के अंदर थिंग्स को यूज कर रहे हैं या जो भी हम मशीनरी यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उस केस में जो डिफेक्ट अराइज होगा, उस वजह से जो डिफेक्ट होता है ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज. नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हमारी थिंग्स में या मशीनरी पर जो भी डिफेक्ट अराइज होगा उसके वजह से आपके बिजनेस पे लॉस सफर करना पड़ेगा. या ये कह सकते हो कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कैलेमिटीज, पेरिसेबिलिटी ऑफ द गुड्स एज वेल एज वियर एंड टियर ऑफ machinery also create a risk due to which a business face a great loss. We already know, हम सबको पता है कि जो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज है, नेचुरल कॉजेज है, उसमें आपके प्रोडक्ट पे कभी ना कभी जंग लग जाता है. आपके घर पे कोई भी कूलर वगैरह है
तो उस केस में वो पेरिसिबिलिटी नेचर के कोई भी गुड्स हो, जल्दी खराब होने वाले, तो वो भी नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से अगर नेचर में कोई चेंज हो रहा है, या ये कह सकते हो किसी भी टाइप से आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से जो भी हम थिंग्स यूज कर रहे हैं या मशीनरी में कोई डिफेक्ट अराइज हो रहा है, तो उस वजह से जो रिस्क अराइज होगा, बिजनेस रिस्क, उसकी वजह से हमें लॉस, हैवी अमाउंट में लॉस फेस करना पड़ेगा। पेरिसेबिलिटी ऑफ गुड्स, जल्दी खराब होने वाले गुड्स भी आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से है। ऐसे ही ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी, आपकी मशीन खराब होना, मशीन में कोई टूट फूट होना, उन पे जंग लगना, वो सभी आपकी किसकी वजह से है? अदर नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द अदर कॉजेज इज टेक्निकल कॉजेज। You already know about that. With the invention of new technology, many new machinery comes in the market. आपकी अगर किसी भी टाइप की न्यू इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो न्यू टेक्नोलॉजी की, तो उस वजह से बहुत सारी आपकी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो मार्केट में आ जाएंगी। जैसे ही आपकी मॉडर्न टेक्निक्स मार्केट में आएंगी, मॉडर्न मशीनरी मार्केट में आएंगी, तो उसकी वजह से आपकी जो ओल्ड टेक्निक्स हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप मशीनरी यूज कर रहे हो, वो सारी ओल्ड टेक्निक पर बेस करती हैं। वो सारी मशीनरी, सारी टेक्निक क्या हो जाएंगी? डिस्कार्ड हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी। और हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी पुरानी मशीनरी को न्यू मशीनरी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपकी मार्केट में अवेलेबल है, उस नई टेक्निक से रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिस्क अराइज होता है। बिजनेस रिस्क इज बोर्न आउट, क्योंकि मार्केट की डिमांड बन जाएगी आपकी कि मार्केट में जो भी नई टेक्निक आई हुई है, उस नई टेक्निक को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। तो कंपटीशन में कभी भी पीछे ना रहने की वजह से हमेशा अपने कंपटीशन को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में फेस करने के लिए हमें अपनी पुरानी मशीनरी को, पुरानी टेक्निक को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और नई मशीनरी को, नई टेक्निक को बिजनेस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में भी बिजनेस रिस्क आपका अराइज हो सकता है। नाउ द थर्ड वन इज मैकेनिकल कॉजेज। The mechanical causes are those causes which are directly linked to the machinery. The name indicates mechanical. All that works of the mechanic work is related to the machinery as well as the equipment. In business organization, if there is a defect in machinery, then we face a terrible result. अगर किसी भी टाइप से आपकी मशीनरी में कोई डिफेक्ट है, इक्विपमेंट में कोई डिफेक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेरिबल रिजल्ट फेस करने पड़ेंगे। आप एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, द बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर व्हाइल इन ऑपरेशन। जब आपका कोई भी बॉयलर यूज हो रहा है ऑपरेशन में और वो बर्स्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस केस में आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा? रिस्क अराइज हो जाएगा। तो बिजनेस रिस्क इज बोर्न आउट। कहने का मतलब आपकी जितनी भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर स्मूथली बगैर किसी डिफेक्ट के है तो आपका वर्क बिल्कुल स्मूथली चलेगा। लेकिन किसी भी टाइप से मशीनरी में, इक्विपमेंट में कोई भी डिफेक्ट है, तो वो बिजनेस में आपके टेरिबल रिजल्ट कर सकता है। किसी टाइप से मशीनरी में आपका ब्लास्ट हो सकता है, ह्यूमन बीइंग पर, रॉ मटेरियल पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस रिस्क अराइज होगा। जैसे ही अगर हमने बस्टिंग ऑयल यूज किया है, या ये कह सकते हैं बॉयलर यूज कर रहे हैं हम ऑपरेशन में, उसमें ब्लास्ट हो जाए या वो बर्स्ट हो जाए, तो आपका जो बिजनेस रिस्क है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपके बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इट इज द मैकेनिकल कॉजेज। द लास्ट वन इज मैनेजरियल कॉजेज।
The managerial causes, the name indicate with the particular person related to the person who manage the business organization. Every type of the decision taken by the manager and every type of the activity which is managed by a particular person is known as the manager. So the management is the sole base of the entire बिजनेस। तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपके पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकेली बेस है। पूरा बिजनेस जो है उस मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगा। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, अगर आपका मैनेजर एफिशिएंट नहीं है, मैनेजर इनएफिशिएंट है, देन he is not capable for making favorable policies। तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप की फेवरेबल पॉलिसी नहीं बना पाएगा क्योंकि वो एफिशिएंट है नहीं, उसे पूरी नॉलेज नहीं है। तो ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर मैनेजर ही इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग द फेवरेबल पॉलिसी। और अगर उसने कोई पॉलिसी बना भी दी तो वो बिजनेस के ऊपर क्या करेगी, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी और आपके बिजनेस के ऊपर क्या हो जाएगा, एक रिस्क अराइज हो जाएगा। तो बिजनेस रिस्क इज बोर्न आउट। तो हमारे जो भी बिजनेस रिस्क था उसके अदर कॉजेज हमने आज डिस्कस किए हैं। अदर कॉजेज में आपका एक नेचुरल क्लैमिटीज था, उसके बाद हमने टेक्निकल कॉजेज डिस्कस किए हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया है मैकेनिकल कॉज और फिर फोर्थ में हमने डिस्कस किया है managerial causes. The business risk and the nature of business risk and the causes of business risk, all the complete elements and parts of this chapter is complete. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.